Hello everyone, this is Shalini Porwal and I'm today with a video and the video is from a very beautiful poem which is written by W.V. Yeats, a prayer for my daughter which is dedicated really to his daughter and he has written that for his daughter and it is a kind of prayer which any father prays for his daughter and I think father or as a parent anybody will definitely pray this. So here I by myself trying to explain this beautiful poem what the actual W.B. Yeats tried to say in his beautiful poem. So the beautiful poem will start with the infant whose name is Annie and the Annie is Yeats' daughter name. So first we will have to understand what the poem covers. So before starting with the first stanza, I will tell you about something about the poem. So a prayer for my daughter is a personal reflection on the future of his newborn daughter Annie set against the backdrop of the Irish War of Independence 1919. So here in this poem, here some words are related to the natural settings, natural disaster or natural unhappenings, but it is just for the cover up of this Irish war. So basically, the poet wants to say about the war, about the politics, but he is not directly saying this. He is telling in different way, and he is really very in great gloom and he is really very worried about the future of his daughter which he is praying for should be good one. So he said as a father that is profound anxiety and hopes for his child prays for her to possess inner virtues like courtesy, like kindness, like innocence. So rather than mere physical beauty. So physical beauty will come or go, it will give the vain or the disappointments, but he is focusing on the inner beauties, inner virtues. So which he believes can lead to be success and happy in life, to be delighted in life rather than vanity and unhappiness that is coming from the physical beauty. Okay, so he said, and he wishes ultimately for his daughter to find peace and fulfillment through tradition, customs, and ceremony, which he sees as anchors against arrogance of the modern world, leading to the true self possession and happiness. So let's start with the first beautiful stanza of this poem, this beautiful poem, A Prayer for My Daughter in My Way. Once more the storm is howling, storm तूफान howling गरज रहा है, चीख रहा है अपने आप में एक शोर, तूफानी शोर. And half it under the cradle hood and coverlid you can see a baby in the cradle. So my child sleeps on. There is no obstacle but Gregory's Wood and on Bear Hill, whereby the haystack and roof leveling wind bred on the Atlantic can be stayed, and for an hour I have prayed to make her calm and free. The poem opens with the immediate scene, the howling storm outside, symbolizing the intense political turmoil and violence of the Irish War 1919 for the independence. Inside the poet's infant daughter Annie sleeps safely in her cradle. It's note that only Gregory's Wood and Bear Hill stand between them and the destructive Atlantic wind. For an hour, he has been pacing and praying, overwhelmed by the great gloom in his mind, fearing for his cute daughter's future in such a volatile world.
जैसे गरजता हुआ तूफान, जो कि आयरिश स्वतंत्रता संग्राम या तीव्र राजनीतिक उथल पुथल का प्रतीक है। अंदर कवि की एक नवजात छोटी सी बेटी एनी, बताते हैं ईट्स के ग्रेगरी के जंगल, उसका जिक्र किया है। एक पार्क जो कि संपत्ति है लेडी ग्रेगरी की, और एक पहाड़ी के अलावा उन्हें अटलांटिक से आने वाली विनाशकारी हवा के बीच में कोई बाधा नहीं है। वो ठहरते हैं और चलते हैं, वो प्रे कर रहे हैं, एक गहरी उदासी लिए हुए, टहलते हुए, कि इस अस्थिर संसार में उनकी बेटी का भविष्य कैसा होगा, क्या होगा। इस तरीके से वो परेशान है। यहाँ पे वो जंगल है, हेयर स्टेक, घास भूसे का ढेर, रूफ छत हो गया, विंड हवा हो गई। इस तरीके से इस पोएम में प्रेयर के साथ स्टार्टिंग है। हम सेकंड स्टेंजा के साइड जाते हैं, और इसमें सेकंड एंड थर्ड दो स्टेंजास वी कैन सी। So first one is from I have walked till innocence of the sea, and second one is from may she be granted with a find a friend. So when we read the second stanza, we will understand further what he is praying for his daughter. I have walked and prayed for his young child for an hour, for this young child for an hour, and heard the sea wind cream. Cream means एक तरीके की चीख, ठीक है, शोर, आवाज, टावर के ऊपर जो आ रही, एंड अंडर द आर्क्स ऑफ द ब्रिज, जो ब्रिज यानी पुल है उसके जो नीचे, जो उसके अंदर जो तेज पानी बहता है, उसकी आवाज आना, एम्स के जो पेड़ हैं, उस जो नदी बहती हुई एक तरीके की नदी है, बाढ़ वाला जो है उसके ऊपर का, इस तरीके से उन्होंने जिक्र किया है। कहते हैं इमेजिनिंग इन एक्साइटेड reverie that the future years had come, dancing to a frenzied drum, ठीक, out of the murderous innocence of the sea यानी समुद्र, ठीक। तो अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि सेकंड स्टेंजा कैसे है। It continues to describe his hour of anxious walk and praying. He hears the violent sound of the storm, the sea wind screaming against the tower under bridges arc, and in the elm tree above a flooded stream. The vivid natural mirrors the political chaos, and then imagines in a vivid, almost trance-like state. So that the future years have already arrived. That is stated in Dancing to a Frenzied Drum. So yet these years emerge from the murderous innocence of the sea, a powerful oxymoron. कुल मिलाकर आप ये समझने की कोशिश करें कि पिता जो अपने कदमों के साथ, अपनी चहलकदमी के साथ चल रहा है, घंटों प्रेयर कर रहा है, प्रेयर कर रहा है, और वो प्रेयर कैसे हो रही है, जबकि तूफान की हिंसक आवाजें सुनाई दे रही हैं, समुद्र की हवा का टावर से टकरा जाना, पुल के नीचे जो वाले हिस्से में बाढ़ की धारा बह रही है, ऊपर पेड़ की आवाजें, इस तरीके से जो भी प्राकृतिक अराजकता को दर्शाया गया है, ये वास्तविक में प्राकृतिक अराजकता ना होकर राजनीतिक जो अशांति का माहौल, जो आयरिश स्वतंत्रता के वॉर में की वजह से जो बन रहा है, ये उस वजह से उसको इस तरीके से कहने की कोशिश की गई है। तो उनका कहना है कि वो भविष्य जो है वो तो भविष्य के वर्ष पहले ही आ चुके हैं। एक उन्मादी ढोल की अनियंत्रित जो नाच रहे हैं, ठीक है, समुद्र की हत्यारी मासूमियत से बाहर आ रहे हैं। यह एक सशक्त विरोधाभास है जो बताता है कि विनाशकारी शक्तियां जो हैं वो शुद्ध या स्वाभाविक लग सकती हैं। जो भी हमारी विनाशकारी शक्तियां जो कैसे विनाशकारी जो युद्ध की वजह से स्थिति उत्पन्न हो रही है उसकी, उसमें ये जिक्र हो रहा है। मे शी बी ग्रांटेड ब्यूटी एंड येट नॉट। अब यहाँ पर बात की गई है, पोइट आगे और अपने प्रार्थना में जोड़ रहे हैं कि ईश्वर जब उसको प्रेयर जो उसकी सुन रहे हैं उसको में क्या ऐड करें क्या ना करें। तो उन्होंने कहने की कोशिश की है कि he wishes her beauty, but with a crucial caveat, not too much beauty. So
She may she be granted beauty and not beauty to make a stranger's eye distraught, or her before a looking glass for such। अब यहाँ पे सुंदरता की बात की गई है, तो सुंदरता जब किसी के पास आती है तो सुंदरता अपने साथ साथ घमंड लेकर आती है। अब घमंड लेकर जब आएगी तो घमंड जो होगा वो लोगों को एक तरीके से क्या कहेगा, अ, दुष्ट प्रवृत्ति का बना देगा, यानी कि उनके अंदर फिर एक क्रोध आएगा, नफरत होगी, बुरा भी लगेगा, दुखी भी होंगे आगे जाके, तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें उत्पन्न हो जाती हैं। तो अगर बहुत ज्यादा सुंदरता होगी तो किसी के भी आंखों में उसके लिए व्याकुलता आ जाएगी, देखते ही बहुत ज्यादा सुंदरता जब किसी के पास में होगी, ठीक है। डिस्ट्रॉट यानी कि व्याकुल करने वाली, एकदम पागल करने वाली, ठीक है। तो इस तरीके से कहने की कोशिश की गई है। तो उन्होंने कहा है कि एक ऐसी सुंदरता की कामना कर रहे हैं कि जो सुंदरता हो लेकिन एक सीमित सुंदरता के साथ हो। ऑन हर बिफोर अ लुकिंग ग्लास फॉर सच बीइंग मेड ब्यूटीफुल ओवर मच कंसीडर ब्यूटी अ सफिशिएंट एंड lose natural kindness and maybe the heart revealing intimacy that chooses right and never find a friend। यानी कि अगर सुंदरता ही अपने आप में सब कुछ हो जाएगी और लोग वास्तविक जो दयालुता है उसको खो देंगे, जो हृदय उद्घाटित अंतरंगता है उसको खो देंगे, तो वो वास्तविक जीवन में सच्चे मित्र नहीं बना सकते हैं। एंड नेवर फाइंड अ फ्रेंड, उसमें उसमें संबंध नहीं बनेंगे, रिलेशनशिप नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि सुंदरता ही सब कुछ हो जाएगी। इफ दे विल कंसीडर, इफ एनीबडी विल कंसीडर द ब्यूटी इज सफिशिएंट एंड देन देयर इज नथिंग, the words like kindness, heart revealing intimacy and other things, so that the poet doesn't want in his daughter. Let's continue with the next stanza, which is stanza number 4 and 5. Helen, being chosen, found life flat and dull, and later had much trouble from a fool, while that great queen that rose out of the spray, being fatherless, could have her way, yet chose a bandy-legged smith for man. It's certain that fine women eat a crazy salad with their meat, and whereby the horn of plenty is undone. It's used classical allu- allusions to support his argument about the perils of excessive beauty. He cites Helen of Troy, who whose unparalleled beauty led to a life that became flat and dull, यानी कि नीरस और उबाऊ, and brought her much trouble from a fool, और एकदम मूर्खतापूर्ण जैसे पागलपन वाला सीन। He contrasts his with that great queen that rose out of the spray, who despite her divine freedom chose the bandy लेग्ड स्मिथ। सो जिसने एक लंगड़े से व्यक्ति से, बिना पैर वाले एक तरीके से कह सकते हैं व्यक्ति से शादी करना, एक या सॉरी कह सकते हैं ब्लेंडी यानी कि टेढ़े पैर, ठीक है। तो टेढ़े पैरों वाला लोहार से शादी करना या उसको चुनना, शादी करना या उसको चुनना, तो इस तरीके से सिंबलाइजिंग अ चॉइस फॉर अ सब्सटेंस ओवर सुपर Speciality, he concludes that fine women often consume a crazy salad with their meat, meaning they make foolish or unwise choices that ultimately lead to the undoing of their horn of plenty, which is a symbol of abundance and prosperity. So, horn of plenty is a symbol of abundance and prosperity, यानी कि समृद्धि का प्रतीक होना, बहुतायत या समृद्धि का प्रतीक होना, ठीक है। तो कुल मिलाकर जो हेलन जो है, ट्रॉय की हेलन, उनका उदाहरण दिया गया, बहुत ही सुंदर महिला, लेकिन उतनी सुंदरता का कि क्या भाई मतलब जबकि जीवन हो गया उसकी वजह से नीरस और उबाऊ, तो या फिर कोई एक मूर्ख, या फिर उसकी तुलना में उन्होंने एक महान महारानी की भी दे दी, जिन्होंने जो है कहा, जिन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को चुना जिनके पैर टेढ़े थे। तो इस तरीके से जो उत्तम महिलाएं यानी कि जो सुंदर महिलाएं हैं वो अपना अपने वो पागलपन में क्या करती हैं, वो
अपने ही मांस के साथ सलाद खा जाती हैं। तो ये एक तरीके से मूर्खतापूर्ण या अविवेकपूर्ण चुनाव होता है, और जो कि विनाश का कारण होता है, क्योंकि वह जो है प्लेंटी ऑफ हॉर्स हॉर्न को चुनती नहीं है, उसको त्याग देती हैं या उसका जगह कुछ और कर लेती हैं। इन कर्टसी I'd have her chiefly learned hearts are not had as a gift but hearts are earned। सीधा सीधा है कि शिष्टता में आप जो है आपको सीखनी चाहिए, और किसी को भी दिल उपहार में नहीं मिलता, उसको कमाना पड़ता है। By those that are not entirely beautiful, yet many that have played the fool for beauty's very self has charm made wise, and many a poor man that have roved, loved, and thought himself beloved from a glad kindness cannot take his eyes। So, किड्स का कहना क्या है कि शिष्टता जो है वो उपहार में जो है, शिष्टता तो सीखी जा सकती है, लेकिन उपहार में किसी को दिल नहीं मिलते, बल्कि उसे कमाना पड़ता है लोगों से, प्यार से, अपनेपन से। जो पूरी तरीके से सुंदर नहीं होते, फिर भी सुंदरता यानी कि मूर्खता का एक तरीके का अत्यधिक सुंदरता मूर्खता का प्रतीक, यानी कि जो केवल और केवल सुंदरता को ही सब कुछ मानते हैं, उन्हें आकर्षण ने बुद्धिमान बना दिया। और बाद में जो होते हैं कई गरीब आदमी जो भटकते रहे, प्यार करते रहे और खुद को प्रिय समझते रहे, वे एक संपन्न दयालुता से अपनी आंखें हटा नहीं सकते, यानी कि सॉरी, दे कैन नॉट टेक द आइज फ्रॉम द ग्लैड काइंडनेस। तो जहाँ पे भी काइंडनेस होगी, वहां पे अपने आप की नजर जाएगी ही जाएगी। इस तरीके से कवि का कहना है। उनका कहना है कि सच्चा प्रेम और मित्रता सुंदरता से नहीं, बल्कि चरित्र से होनी चाहिए, दयालुता से अर्जित की जाती है। प्रसन्न दयालुता और महत्वपूर्ण, यही एक सच्चा गुण है जो सच्चा स्नेह और खुशी लाता है, जीवन में हैप्पीनेस लाता है। नेक्स्ट स्टेंजा की बात करते हैं, स्टेंजा नंबर 6 and 7। May she become a flourishing hidden tree that all her thoughts may like the linnet be। लिनेट एक बर्ड होती है छोटी सी, जो बढ़िया से गाने गाती है, अपना आनंदमय जीवन जीती है। एंड हैव नो बिजनेस येट डिस्पेंसिंग राउंड, उसका कोई और ऐसा काम नहीं होता है। देयर मैग्निमिटीज ऑफ साउंड नॉर बट इन मैरीमेंट बिगिन अ चेज, नॉर बट इन मैरीमेंट अ क्वेरल, और may she live like some green laurel rooted in one dear perpetual place। तो बात की गई है एक हिडन ट्री की, ठीक है, फ्लोरिसिंग हिडन ट्री की बात की गई है। और एक तरीके की सुखद अनुभव दे, मैरीमेंट यानी कि एक आमोद प्रदान करे, झगड़ा ना हो, जिसमें जिसमें किसी के पीछे भागना ना हो, तो इस तरीके का जिक्र किया गया है। तो जैसे कि फलता फूलता हुआ छिपा हुआ पेड़ बन जाओ, ताकि उनके सभी विचार लिनेट की तरह हो जाएं, जो एक इसका एकमात्र काम जो होता है ध्वनि की उदारता को बिखेरना होता है, यानी कि वो गाएगी तो वो ध्वनि को बिखेर ही रही है, एक सुंदर ध्वनि को, ना तो केवल मौज मस्ती के अलावा कोई पीछा शुरू करे, और ना ही केवल मौज मस्ती के अलावा कोई झगड़ा। तो उनका कहना है कि काश हरे जो लॉरेल के पेड़ हैं उसकी तरह हो जाए, जो एक प्यारे शाश्वत स्थान में जड़े जमाए हुए हैं, जिनकी रूटिंग जो है एक ही स्थान पर है, परपेचुअल शाश्वत स्थान पर है। माई माइंड बिकॉज द माइंड्स दैट आई हैव लव्ड द सॉर्ट ऑफ ब्यूटी दैट आई हैव अप्रूव्ड prosper but little has dried up of late, yet knows that to be choked with hate may well be of all evil chances chief, if there's no hatred in a mind, assault and battery of the wind कैन नेवर टीयर द लिनेट फ्रॉम अ लीफ, यानी कि पत्ती से लिनेट को दूर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से माई माइंड मेरा मन, बिकॉज द माइंड दैट आई हैव लव जिसको मैं प्यार करता हूँ, दैट सॉर्ट ऑफ ब्यूटी जो कि एक तरीके की सुंदरता, दैट आई हैव अप्रूव्ड जिसको मैंने अप्रूवल दिया, यानी कि स्वीकृति दी। प्रॉस्पर बट लिटिल, फली फूली बट थोड़ा ही, बाद में सूख गई, ड्राइड अप ऑफ लेट बाद में सूख गई, येट नोज दैट टू बी चोक्ड विथ हेट, और वो उसमें घृणा भर गई है। मे वेल ऑफ बी ऑफ ऑल इविल चांसेस चीफ, यानी कि एकदम से
एक इविल का क्या मतलब है, एक तरीके से शैतान, ठीक है, बुराई, बुराई की बात हो रही है। इफ देयर नो हेट्रेड इन अ माइंड, अगर दिमाग में बिल्कुल भी नफरत नहीं होगी, घृणा नहीं होगी, असल्ट एंड बैटरी ऑफ द विंड कैन नेवर टीयर द लिनेट फ्रॉम अ लीफ, तो फिर लिनेट को लीफ से यानी कि पत्ती से अलग नहीं किया जा सकता है। तो येट्स ने कहा कि अपने अनुभवों पर विचार किया, जो उन्होंने अपनी पसंद की बुद्धिमान और सुंदर स्त्री जो जो उनकी प्रेमिका रही हैं, अक्सर राजनीतिक जुनून या निराशा से भरी थी और उनके जीवन में इस वजह से दुख आया। वह कहते हैं कि मन में नफरत रखना सबसे बड़ा खतरा, दैट इज मोस्ट डेंजरस इफ यू आर कीपिंग हेट्रेड इन योर माइंड फॉर एनीवन। सो यदि मन में आपकी घृणा है या बाहरी दुनिया में चुनौती या हिंसा व्यक्ति की आंतरिक शांति को छीन रही है, तो ऐसा नहीं है। अगर व्यक्ति के अंदर आंतरिक शांति व हुए खुशी है तो उसे कोई भी अलग नहीं कर सकता है। यहाँ पर लिनेट और पत्ती का जिक्र है, वो आंतरिक शांति और खुशी से, जिसे कोई आपसे छीन नहीं पाएगा। नेक्स्ट, एन इंटेलेक्चुअल हेट्रेड इज द वर्स्ट। बौद्धिक घृणा तो सबसे बुरी घृणा है। इन्होंने इसको बिल्कुल इसकी क्रिटिसाइज करने की कोशिश की। सो लेट हर थिंक ओपिनियन आर accursed. Have I not seen the loveliest woman born out of the mouth of plenty on because of her opinionated mind bartered that horn and every good by quite natural natures understood for an old billows full of angry wind, यानी कि एक क्रोधित हवा, ठीक, बिलो यानी कि फूकनी, जिससे हवा फूकी जाती है, ओल्ड बिलो की बात की गई है, नेचर की बात की गई है, अंडरस्टैंडिंग की बात की गई है, राय की बात की गई, प्लेंटी ऑफ हॉर्न्स की बात की गई है, वुमेन की बात की गई है, सांप की बात की गई है। तो तमाम तरीके से यहाँ पर जिक्र किया गया है स्ट्रेंजर नंबर 8 में। तो इसमें कहा गया है कि जो भौतिक घृणा है वो सबसे ज्यादा बेकार घृणा है। वह राय को सापित मानते हैं, जो राय देना है राय को सापित मानते हैं, क्योंकि वह अक्सर घृणा और विभाजन को जन्म देगी। जब आप किसी को ओपिनियन देंगे तो ओपिनियन से जरूरी नहीं कि हर किसी को अच्छे लगे, तो उसी से सारा विवाद उत्पन्न हो जाता है। वह जो अपनी प्रेम का जो उनकी उसका उन्होंने संदर्भ दिया, उन्होंने कहा कि तीव्र जो राजनीतिक सक्रियता है उसने उन्हें हटी राय ने उन्हें लगता है कि उन्हें प्राकृतिक सुंदरता और शांति से दूर कर दिया। नेचुरल हैप्पीनेस ब्यूटी उससे दूर कर दिया और उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ गुस्सा भर दिया, सिर्फ और सिर्फ गुस्सा भर दिया। So, considering that all hatred driven, hence the soul recovers radical innocence and learns at last that it is self delighting, self appeasing, self affightening, and that his own sweet will is heaven will seek, and though every face should scowl and every windy quarter howl or every bellows must be happy still. So considering that, इस पे विचार करते हुए that all hatred driven hence, जब सारी घृणा चली जाएगी तो जो सोल है वो रिकवर होगी, यानी आपकी आत्मा फिर से वापस पुनः प्राप्त कर लेगी आपके मौलिक, आपके अंदर जो इनोसेंस है, यानी कि आपके अंदर जो क्या है, इनोसेंस मासूमियत है, उसको वापस प्राप्त कर लेगी। एंड लर्न्स एट लास्ट दैट इट इज सेल्फ डिलाइटनिंग, फिर आपको आत्म खुशी होगी, आत्म सुख का अनुभव होगा, सेल्फ अपीजिंग, आप स्वयं जो है संतोषजनक फील करेंगे, सेल्फ एफ्राइटनिंग, स्वयं जो है भयभीत, ऐसा हर तरीके का आप माहौल जो है जब आप ये सब प्राप्त करेंगे सीखेंगे तब निकल के आएगा। एंड दैट इज ओन स्वीट विल इज हेवन विल, तो आपको लगेगा कि यह जो स्वर्ग है वह बहुत ही सुंदर सुंदर मधुर, ऐसे मधुर स्वर्ग की आपकी इच्छा इस तरीके से। एंड सी कैन दो एवरी फेस शुड स्क्राउड, और फिर चाहे चेहरा भौं से कोड़े या फिर हवादार जगह से दहाड़ सुनाई दे या फिर धौकनी फट जाए, जो बिलो है वो वस्ट हो जाए, फट जाए, फिर भी आप खुश रहोगे, बी स्टिल हैप्पी स्टिल। सो दिस इज वाट वंस द हेट्रेड ड्राइवन आउट फ्रॉम your body, your soul, you will get your soul, the innocence of your beauty, innocence of your soul that you will get, एंड यू विल बी हैप्पी। फिर कुछ भी हो जाए फिर आपको सब कुछ अच्छा अच्छा लगेगा। इस तरीके से उन्होंने लास्ट स्टेंजा में कहा, एंड मे हर ब्राइड ग्रूम ब्रिंग हर टू अ हाउस, sorry, where all accustomed ceremonies for arrogance and hatred are the
wears pedal in the thoroughfares. How, but in custom and in ceremony, are innocence and beauty born. Ceremonies are named for the rich horn and custom for spreading laurel tree. सो लॉरेल ट्री का फिर से जिक्र है। ब्राइड ग्रूम यानी दूल्हा, दूल्हा जब उनकी लड़की को, उनकी बेटी को घर लेके आएगा, तो इस तरीके से उन्होंने अगले और लास्ट स्टेंजा की बात की गई है। अब इसमें एक्चुअल मीनिंग क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। जो सेरेमनीज की बात की गई है, जो कस्टम्स की बात की गई है, उसको समझते हैं। तो जीवन की एक ऐसी जीवन की कामना उनकी बेटी के लिए उनको लग रही है जहाँ पे स्थिरता हो, परंपरा हो, अहंकार ना हो, घृणा ना हो, जिन्हें जो समाज समाज में बुराइयां माना जाता है, जिन्हें समाज का नहीं बल्कि जीवन की बुराई मानी जाती है, वो चीजें ना हो। तर्क दिया कि सच्ची मासूमियत जो है, जो सच्ची मासूमियत है, और वो बनी रहे, बाहरी दिखावा नहीं हो, बल्कि एक स्थापित रीति रिवाज और औपचारिकता में जो निहित परंपराएं हैं उनसे ही सुखद और स्थायी शांति प्राप्त हो। प्रचुर और सुखद, जो हॉर्न ऑफ प्लेंटी की बात की गई है, एक अबंडेंस ऑफ हैप्पीनेस की बात की गई है। तो जैसे कि उसका दूल्हा उसे एक ऐसे घर में लाए जहाँ पे सब कुछ अभ्यस्त हो, औपचारिक हो, अहंकार और घृणा ना हो, तो जीवन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। रीति रिवाज और औपचारिकता के अलावा जो कैसे मासूमियत और सुंदरता जन्म लेती है। तो कुल मिलाकर इस तरीके से उन्होंने अपनी बेटी के लिए बहुत ही अच्छे से प्रेयर किया है, बहुत ही सुंदर जीवन की कामना की है। हर वो गुण जो एक अच्छे इंसान में होना चाहिए उसमें का जिक्र किया, जो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए उसका भी जिक्र किया है। कैसे जीवन को जीना है, क्या करना है, क्या नहीं, उन्होंने अपने जीवन के खुद के अनुभवों को उसमें डालते हुए अपनी ही बेटी एनी के लिए एक ब्यूटीफुल सी पोयम, a prayer for my daughter लिखा। And I love this poem personally, and I think you all also love this poem. So thank you guys for continuously watching this video till the last stanza and covering all stanzas with me. So thank you once again. Bye bye and take care. मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही।